वेलकम टू अंग्रेजी सूत्रास। मेरा नाम है पल्लव और इस वीडियो में हम करेंगे द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबुलरी की एनालिसिस, वो भी हिंदी में। द आर्टिकल अंडर डिस्कशन इज नथिंग लेफ्ट टू चांस ऑन मैक्स वर्स्टैपेन्स फॉर्मूला 1 ट्रायम्फ। द फर्स्ट वर्ड इज एच। मैक्स वर्स्टैपेन एच्ड हिज नेम इन द हिस्ट्री बुक्स। एच एक वर्ब है विच मीन्स मेकिंग अ डीप एंड क्लियर मार्क ऑन समथिंग। His spectacular performance is etched on our memory. उसकी परफॉर्मेंस हमारी मेमोरी पर छप गई है। Etching on the walls is prohibited. The next word is booming. F1 as a sport is booming in popularity. Boom एक verb है which means to grow quickly in size and value. The boom in COVID cases was controlled by inoculation and lockdown. लॉकडाउन और टीकाकरण के माध्यम से कोविड के बढ़ते हुए केसेस को कम किया गया था। द एडटेक इंडस्ट्री इज बूमिंग इन द कंट्री। जो एडटेक इंडस्ट्री है वो देश में बड़ी तेजी से बढ़ रही है। द नेक्स्ट वन इज मेडन। वर्स्टैपेन सील्ड हिज मेडन टाइटल ऑन द लास्ट लैप ऑफ द लास्ट रेस ऑफ द ईयर इन आबू धाबी। मेडन एक एडजेक्टिव है विच मीन्स फर्स्ट। ही फेल्ड एट हिज मेडन अटेम्प्ट। Her maiden performance was lauded by the audience. Laud का मतलब होता है तारीफ करना। So audience ने उसकी पहली परफॉर्मेंस की तारीफ की। The next word is shroud. However, last year's season finale was shrouded in controversy. Shroud भी एक verb है which means to cover or hide something. किसी चीज को ढकना या छुपाना। His vision got shrouded by the emotions. She can easily shroud her ट्रू फीलिंग्स। वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को आसानी से छुपा सकती है, ढक सकती है। द नेक्स्ट वर्ड इज स्टैगरिंग। द 25-year-old फ्रॉम द नेदरलैंड्स हैज वन अ स्टैगरिंग 12 आउट ऑफ 18 रेसेस। स्टैगरिंग एक एडजेक्टिव है विच मीन्स अनबिलीवेबल, विस्मयकारी। एवरीवन एंजॉयड द स्टैगरिंग एयर शो। द कंटेस्टेंट्स गेव स्टैगरिंग परफॉर्मेंसेस ड्यूरिंग द फिनाले। The next word is prone. But in his initial years, he was prone to making mistakes. Prone भी एक adjective है, which means likely to suffer from something to do or something bad. People are prone to headache and uneasiness at higher altitudes. Higher altitudes पे लोगों को सरदर्द और uneasiness होने की possibility ज़्यादा होती है. He is prone to anxiety in stressful situations. The next word is circumspect, followed by fashion, followed by lowly. Verstappen was circumspect on the opening laps to fashion spectacular wins from lowly grid positions. Circumspect is an adjective which means alert, savdhan. Stay circumspect while driving on the hills. Let's move ahead in a circumspect manner. चलो सावधान होकर आगे बढ़ते हैं। टू फैशन, यहाँ पे जो वर्ड है फैशन वो एक वर्ब की तरह यूज हुआ है विच मीन्स टू मेक समथिंग, कुछ बनाना। हिज टीम फैशन्ड द ब्लू प्रिंट ऑफ द लेटेस्ट आईफोन। ही फैशंस फैंसी स्टेजेस इन डेस्टिनेशन वेडिंग्स। वो डेस्टिनेशन वेडिंग्स में फैंसी स्टेजेस बनाता है। लोली इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स low in status or importance. The holy book teaches us to control the lowly urges. He aspires to elevate the lowly class. Elevate का मतलब होता है ऊपर उठाना। The next word is appetite whetted, followed by pulsating, followed by damn squid. For fans of the sport who had their appetite whetted after last year's pulsating battle between Hamilton and Verstappen, 2022 was a damn squib as Ferrari and Leclerc's early season promise faltered. Whet your appetite is actually a phrase which means increase the desire for something. किसी चीज के लिए इच्छा को बढ़ा देना। Her Instagram reel whetted my appetite to visit Ladakh. मतलब मैं लद्दाख जाना चाहता था, मेरे अंदर ऑलरेडी एक इच्छा थी, लेकिन जब मैंने उसकी रील देखी तो मेरी इच्छा और ज़्यादा बढ़ गई। द इमोशनल अपील ऑफ पॉलिटिशियंस whets the appetite of the uneducated crowd to blindly follow the political agenda. पॉलिटिशियंस इमोशनल अपील करते हैं,
जिसकी वजह से जो अनएजुकेटेड क्राउड होती है, जनता होती है, वो पॉलिटिशियंस के एजेंडा को ब्लाइंडली फॉलो कर लेती है। द नेक्स्ट वर्ड इज पल्सेटिंग विच इज एन एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। His pulsating performance during the finale left the judges spellbound. The audience is thoroughly enjoying the pulsating cricket match. The next word is damn squib. It's very interesting word. ये एक noun होता है। इसका मतलब होता है a situation or event which is much less impressive than expected. कोई एक event है या कोई situation है जिसको बहुत ज़्यादा अच्छा माना जा रहा था, पर एक्चुअली में जब वो हुआ तो वो इतना खास नहीं था, तो उसको डैम स्क्विब कहा जाता है। ड्यू टू इलनेस हिज लॉन्ग अवेटेड परफॉर्मेंस टर्न्ड इनटू अ डैम्प स्क्विब। डिस्पाइट द मंथ लॉन्ग मार्केटिंग कैंपेन द बुक फेयर वॉज अ डैम स्क्विब। एक महीने के मार्केटिंग कैंपेन के बाद भी जो बुक फेयर था वो इतना खास नहीं था। एंड द लास्ट वर्ड इज एलीट। Verstappen is now the 17th member of the elite club of drivers who have won multiple titles. यहाँ पे शब्द as an adjective use हुआ है which means belonging to the best group. Now this could be the best educated group, best skilled group, the wealthiest group, etc. The king summoned the elite warriors for the assassination. Many elite entrepreneurs attended the symposium. तो ये थे इस आर्टिकल से जुड़े डिफ़िकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस। इनमें से जो भी वर्ड्स आपको मुश्किल लगे हैं, जो भी वर्ड्स आपने नहीं सीखे हैं, उनको सेंटेंसेस में यूज़ कीजिए और कमेंट कीजिए। इससे आपको अपनी लर्निंग के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। अंग्रेजी सूत्रास ओवर एंड आउट।